ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಗೆ. ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸರ್, ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I know many of you do not understand Kannada, but being in Bengaluru, I will start my speech with Kannada and then wherever it is needed I will mix English also. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ in a very short span they have tried to do very good things as far as mines and minerals is concerned. Srihara Patel, ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಜು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ GSI, पंकज कुमार पांडे, सेक्रेटरी माइंस जियोलॉजी, श्री उपेंद्र जोशी, जॉइंट सेक्रेटरी, other senior officials of GSI and Government of India, Government of Karnataka, and all other officials of the GSI, scientific from scientific community especially. I am very happy that such a very good facility has been inaugurated today in Bengaluru. I am delighted amongst the brightest minds of the world in the mining and exploration sector. मैं पहले थोड़ा जो रेडी स्पीच है वो बोल के जो कुछ भी अभी बदलाव आया है उसके बारे में आपके साथ थोड़ा मेरा विचार शेयर करूंगा. We have experts from the country's top organizations like IBM, National Institute of Rock Mechanics, GSI, of course State Department like Karnataka, Department of Mines, Geology, Atomic Minerals, Directorate, Central Groundwater Board and others. इतने लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आप लोग इधर बैठे हुए हैं. मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको ये इस फील्ड के बारे में ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड वॉट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड वॉट वी शुड चेंज, आई एक्सपेक्ट यू टू गिव योर इनपुट्स whenever you want. My office is always open. Geological information can play a key role in addressing the challenges of sustainable development such as land degradation, groundwater protection and contribute to improved decision making process. In this regard, Geological Survey of India is carrying out a significant work in the field of mineral exploration and giving direction to the geoscience in the country. GSI has also signed the MOUs with the other countries for the cooperation in this field. But at this time, I urge you, Raju ji, जहाँ भी हमारा whatever the MOUs have taken place, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं. जहाँ डेवलप्ड कंट्री एज फार एज माइनिंग इज कंसर्न, जहाँ तक मैं देखा हूँ हमारा MOU हुआ है, लेकिन वो MOU जहाँ है वैसे ही पड़ा है. तो ये प्रधानमंत्री जी भी बार बार पूछते हैं कितना MOU करते हैं. वन ऑफ द डिपार्टमेंट विच हैज गॉट हाईएस्ट MOU इज आवर डिपार्टमेंट. बहुत लोगों से MOU करते हैं, लेकिन MOU करने के बाद उधर जो चल रहा है बहुत अच्छा सस्टेनेबल माइनिंग हमको बोला जाता है. मैं अभी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ. I have been briefed that the very good sustainable mining is taking place in Australia.
तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट हमारा एमओयू हुआ है, उसका कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, ये भी हमको बहुत गंभीर बात है। हर एक एमओयू के बारे में हमको सोचना है, वी नीड टू थिंक ऑन दैट। अगर कुछ बदलाव लाना है तो कहीं कहीं क्या हुआ है, कभी कभी हमारा एमओयू भी पहले, इससे पहले हमारा सरकार आने से पहले कुछ मुझे बताया गया, इफ आई एम रॉन्ग आई एम नॉट कमेंटिंग पॉलिटिकली ऑन दिस, थोड़ा कुछ कमियां भी उसमें, वो भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जीएसआई को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कितने हमारे पास एमओयू पड़े हुए हैं ये आप सोचिए। As we know, the progress of any country depends on largely on its mineral wealth. We need minerals for the core infrastructure development. इस बीच में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ अभी हम ये सब प्लास्टिक वगैरह जो हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं पॉलिथीन शीट, इसके लिए जो कुछ भी हम करते हैं, हम बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करने के बाद जो हमको थोड़ा कुछ टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह मिलता है, वही हमारा इनकम होता है। लेकिन जो हम मिनरल सेक्टर से उत्पादन करते हैं और मिनरल्स को निकालते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, दैट इज द कोर इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज द कोर इकोनॉमी। तो ये कोर इकोनॉमी पकड़ने के लिए हमको ज्यादा इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी 91 या 92 मिनरल्स है हमारे पास। भारत में कितना है? 92 है, 91, मोर देन 90 से, मोर देन 90। तो 90 के बारे में हमको कई लोगों को, कुछ लोगों को 90 के बारे में बहुत ज्यादा प्यार रहता है। तो 90 के ज्यादा हमारा मिनरल्स, लेकिन हमारा इतना पोटेंशियल है, क्या कम है भारत देश में। लेकिन जितना होने का था उतना नहीं हुआ है। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ इस 8 वर्ष में हमने बहुत बदलाव लाया है। और रिसेंट जो हमारे अमेंडमेंट हुआ है, पॉलिसी रिफॉर्म हमने किया, आप लोगों से ही बात कर किया है। उस टाइम आप जब भी डीजी थे, तब आपसे भी हमने बात की थी। बहुत लोग इधर जो बैठे हुए हैं हमारे ऑफिसर्स बात किए थे, उसके आधार पर हमने कुछ बदलाव लाए हैं। और अभी भी हम एक बहुत बड़ा और एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिफॉर्म माइनिंग सेक्टर में हम लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका फीडबैक चाहूंगा। एकदम छोटे से छोटे ऑफिसर क्यों ना हो, आप अपने फीडबैक हमारा मंत्रालय को दीजिए। एवरीथिंग विल बी अटेंडेड। आई वांट स्पेशली यंगस्टर्स टू गिव योर ओपिनियन, क्योंकि हम इस कोर सेक्टर में हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ है। रत्नगर्भा वसुंधरा बोलते हैं, इस भूगर्भ में रत्न है, इसलिए इसके गर्भ में इस वसुंधरा के गर्भ में बहुत बड़ी मात्रा बोलते हैं। हमको और कुछ काम करना है। फॉर टैपिंग अवर मिनरल वेल्थ वी मस्ट बी एबल टू एफिशिएंटली एक्सप्लोर and identify these minerals and metals. For this, we need geological field to work along with the high precision analytical equipment, techniques to detect the even low concentration of the metal and need to be made available. This is where the establishment of the laboratories with advanced analytical instrument becomes absolutely essential. Only with the help of such facilities we will be able to achieve the vision of modernizing our mineral and mining sector at par with leading global economies. In this regard, GSI has taken steps in the right direction to build new laboratory building. This laboratory has state-of-art instruments capable of carrying out advanced and sophisticated analysis. The national level GSI laboratory complex, which has been inaugurated and dedicated to the nation today, has been developed as the backbone for the sophisticated research and analytical facility, not only for GSI but for all other agencies. Apart from the geoscience and the chemical laboratories, this building will also house the geophysical laboratory. Also, there will be an aerogeophysical data processing center at the complex.
equipped with state-of-art hardware and software, this center will process and integrate a large volume of aerogeophysical data. Such labs will not only help GSI but also departments and the agencies throughout the country that are engaged in geological activities. I am also happy to note that the laboratory is energy efficient building and that natural resources were carefully preserved during the construction. With the establishment of this laboratory, India's mining and geological outfits will benefit immensely from the data regarding mineral composition of surveyed sites. And it is a matter of pride for the people of Karnataka. This laboratory has been established in Bengaluru, Karnataka. Karnataka has a very unique geological status in the world geology. The Dharwad, that is Karnataka Carlton, Dharwad was the original name. Please I will pronounce Dharwad as Dharwad, which is my constituency also. Dharwad Karnataka Carlton contains one of the oldest part of the earth crust. Apart from very unique geology, the state of Karnataka also endowed with the many mineral resources. Under the leadership of and the guidance of Honorable Prime Minister, we have introduced mining reforms to realize our true mineral potential and maximize the exploration of the minerals. मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जो अभी हमने बदलाव लाया है, इसमें भी बहुत ही विरोध हो। टोटल हमारा OGP जो बोलते हैं, ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल, उसका सिर्फ 10% ही सर्वे हुआ। सॉरी, अभी 30% हुआ है। 2014 तक वो 10% है। अभी हम आने के बाद हमने उसमें 30% तक लेके गए। तो इसमें बदलाव लाने के लिए और इसमें एक्सप्लोरेशन कितना हुआ है और माइनिंग कितना होता है, ये बहुत गंभीरता से हम सब लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा। और इसमें भी हम जब बदलाव ला रहे हैं, उसमें भी बहुत विरोध हुआ। ये जो रेड टेपिज्म हमारे देश में है, इसमें हम सब लोग मिलकर खत्म करना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों का, मीन जो साइंटिस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, द साइंटिस्ट हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू नीड टू गाइड अस एंड दिस इज द मोदी गवर्नमेंट नाउ, वी विल चेंज इट। ये तो ऐसे नहीं चलेगा। 10% था और वो 10% है। कितना माइनिंग होता था? 1.5%। कैसे देश आगे चलेगा? हमारे पास एज ऑन डेट जितना हमारा OGP सर्वे वगैरह है, जहां तक मुझे बताया गया है, जब मैं ब्रीफिंग लेता हूं, 900 टन ऑफ गोल्ड हमारे पास है। कितना निकालते हैं? तो इसके कारण क्या है? हमको कोई बदलाव करके कोई रिस्क ले लेना चाहता है, तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मेंटालिटी ऐसे हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनमें लाया 2015 में, तो ऑटोनोमस बॉडी करा के दिया प्रधानमंत्री जी। ये सब प्रधानमंत्री जी कर नहीं सकते, हमको एनिमेट बना के दिया। उसमें पैसा कलेक्ट होता था। प्रधानमंत्री साहब ने बोला ये पैसा उपयोग करो, एक्सप्लोरेशन करो, लेबोरेटरी करो, काम करो। तो हमारा मेंटालिटी क्या है? अगर ऑटोनोमस बॉडी से पैसा हमारे पास आता है तो हम वो पैसा कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, ये सब लफड़ा क्यों? रख दो पैसा, ऐसे ही पड़ा था जी पैसा। 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ में कितना हम एक्सप्लोरेशन करते थे, कितना अच्छे लेबोरेटरी बना सकते थे। ये सोच में हमारा बदलाव आना चाहिए। मैं इधर जो बैठे हुए
ब्यूरोक्रेटिक्स को भी कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको क्या चाहिए हमको बताइए, लेकिन वी वांट परफॉर्मेंस। ठीक है, बीएसआई ने कुछ काम किया है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यू हैव गॉट वेरी गुड पोटेंशियल। हम पैसा देने के लिए तैयार है, हम राज्यों को बुला के पैसा दे रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ सके, उसमें भी विरोध, पैसा पड़ा है, करने वाले क्या है? तो मैंने बोला, मैंने एनमेट का मीटिंग बुलाता हूँ, सब राज्य सरकार पूछते हैं पैसा दे दो, पैसा दे दो। मैं बोलता हूँ मैं पैसा 50% आपको एडवांस देता हूँ। मैंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद बोले असर नहीं होता है। मैंने बोला दे दो पैसा, राज्य सरकार है ना, उनको भी जिम्मेदारी है, अगर वो पैसा खर्चा नहीं करते तो मैं देखता हूं बाद में। तो अभी देखो, जैसे हलपाचार्य जी ने कहा, इसका उपयोग, भरपूर उपयोग कोई किया है तो हमारा उड़ीसा सरकार किया है, उसके बाद आप भी किया है, कर्नाटक सरकार भी किया है आपका। लेकिन अभी कर्नाटक को बहुत पोटेंशियल ज्यादा है, आप उड़ीसा को सरपास कर सकते हैं, यू कैन डू मच बेटर। तो इसीलिए हमने अभी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी हमने लाया है। वी हैव ब्रॉट ट्रांसपेरेंट ऑप्शन प्रोसेस एंड एक्सपीडिटेड द ऑप्शन प्रोसेस। ये सब करने के बाद अभी 186 मिनरल बॉक्स हैव बीन ऑक्शन्ड सो फार, करेक्ट है अभी, एंड so far out of which 32 blocks have already been auctioned this year। हमने एक टारगेट दिया था जीएसआई को, और उसके लिए मंत्रालय में भी हमने चर्चा करके निर्णय लिया था, और वित्त मंत्री इसको अनाउंस भी किया था बजट में, और आत्मनिर्भर भारत में अपना जो 4-5 प्रस्ताव किए थे, उसमें 500 ब्लॉक्स, उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जीएसआई को, सब साइंटिस्ट को, सब अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं, ये टारगेट हमको अचीव करना है, यू कैन नॉट मिस दिस टारगेट। एंड अगर एक बार हम ये एक्सप्लोरेशन करके हम देते हैं, तो बाद में हम एनमेट से पैसा देंगे। मैं सभी सरकारों से, मैं कर्नाटक सरकार से भी आग्रह करता हूं, पंकज कुमार जी आप बैठे हुए मंत्री जी से ठीक तरह से बातचीत करो, उनको इनपुट अच्छा दे दो, और एक प्राइवेट एम्पोज, अगर कर्नाटक में अगर प्राइवेट एम्पायर राज्य में हो सकता है, क्योंकि हम कर्नाटक इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। हमको प्राइवेट एक्सप्लोरेशन के लिए लोगों को बुलाना है, क्योंकि हमारा एक्सप्लोरेशन कम है, इसीलिए हमारा टोटल जो कुछ भी माइनिंग सेक्टर में हम रेवेन्यू अर्न कर सकते। देखो, इस सरकार का एक सोच पक्का है, आप मान के चलिए, हम इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं इंडस्ट्रीज अच्छे काम करे, बिजनेस वाला अपने काम अच्छे करे, और इससे रेवेन्यू आए, वो रेवेन्यू से पुअर पर्सन शुड बी सर्व्ड। दिस इज द फर्म बिलीफ ऑफ अवर। हम साइंटिफिक कम्युनिटी को और साइंटिफिक व्यवस्था को, जो कुछ भी इसमें काम करके उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, सो दैट टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। हमारे बहुत बड़ी मात्रा में हमारा आबादी है, 135 करोड़ पीपल, एंड आवर पीपल आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर्स। ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई, लेकिन उनको मोटिवेट करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी to say that 31 minerals have been auctioned in Karnataka last 7 years, and this year their progress is very good, and we have relaxed the exploration norms, allowed the auction of CL at G4 level। तो क्या होता था, जीवन में ही ऑक्शन करना, जीवन में ऑक्शन करने के लिए हमारा जीवन उतना होता नहीं था। जब तक हम अभी जब G4 में हम करते हैं, हम इसमें एग्जिट रूट रखा है ना जोशी जी, एग्जिट रूट है। अगर किसी एक एरिया हम उनको देते हैं, वी विल हैंड ओवर सम पर्टिकुलर एरिया टू वन पर्सन एंड वी विल आस्क हिम टू एक्सप्लोर। पहले क्या था, वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए पैसा भी डालता था, उनको एग्जिट रूट को कनेक्ट नहीं देना पड़ता था। हमने वो सब हटा दिया मोदी जी के मार्गदर्शन। हमने बोला एक्सप्लोरेशन करो, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आराम से चला जाओ, सिस्टम को डाटा दे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हमने बदलाव लाया है,
इसीलिए G4 लेवल में और स्टेट भी कर सकते हैं। जूनियर माइनर्स का एक कंसेप्ट लाने का कोशिश करो पंकज कुमार जी, इसका बारे में आप बहुत गंभीरता से सोचो। जूनियर माइनर्स, बहुत देशों में जूनियर माइनर्स है। जूनियर माइनर्स क्या होता है, वो एक्सप्लोरेशन करते हैं, जो बाद में एक्सप्लोरेशन के लिए वो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जब उसका एक्चुअली माइनिंग होता है, तो प्रैक्टिकल माइनिंग जब होता है, उसमें उनको कुछ रेवेन्यू देना पड़ता है। तो लोग पीपल विल कम, अरे इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग, इतनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने से बजाय गोल्ड इतना इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में, भारत में इतना गोल्ड के प्रति मोह है उतना कई देश में नहीं है। हमारे गोल्ड भी बहुत है, तो उसके बारे में अगर वो डीप सीटेड है, ठीक है, डीप सीटेड है, तो डीप सीटेड में ज्यादा क्या हम दे सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा हमको। प्राइवेट पीपल को भी हम इसमें DSI, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस, ये सब काम DSI करे, और एक्सप्लोरेशन के लिए और डीप सीटेड एक्सप्लोरेशन के लिए हम बहुत अच्छे लोगों को, प्राइवेट लोगों को इसमें लेते हैं। नहीं तो ऐसे होगा, जो कितना कर रहे हैं 1.5%, तो हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी मात्रा में इसमें बदलाव लाने के लिए निर्देश दिया था, वो हमने जारी भी किया है। From time to time, we keep handing over the mineral blocks at the different levels of exploration to the state government. Over the 6 years, DSI handed over 32 resource-bearing reports to Karnataka government. With the new amendment, MMDA Act, 22 geological memorandum G4 have been handed over and to be optioned for composite license. इसका जल्दी आप बना दीजिए, आराम जी। I urge the state to auction these blocks at the earliest. I am happy to announce that DSI has explored 7 new mineral blocks in Karnataka. These will be handing over soon to Karnataka in upcoming mining conclave at Delhi on 12th July. Out of 7 blocks, 6 G4 level blocks, 1 bauxite. कितना bauxite का डिमांड है? कभी-कभी एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं। मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी ने बोला, देखो प्रहलाद, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कोल, बॉक्साइट, स्टील, पोटैश हम इंपोर्ट करते हैं, तो स्पेशली कोल और आयरन ओर अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो स्पेशली कोल और स्टील वगैरह इसे अगर इंपोर्ट करने के नौबत आता है, तो स्पेशली जो कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है, उसे मैंने प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा। तो क्योंकि हमको हमारा माइंड क्या कहता है, तो भारत देश में है सब करना है, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या कहता है, माइंडसेट वो अलग तरीके से सेट हो गया है। तो माइंडसेट चेंज करने का हम सब लोग मिलकर काम करना है। And out of these 7 blocks in Karnataka, 6 are G4 level blocks, 1 bauxite and 5 gold bauxite, 5 gold blocks. And G2 level 1 limestone है, and that is around 561 million ton. तो सीमेंट का भाव कितना है जी? तो जी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये जो लाइमस्टोन कैप्टिव नॉन कैप्टिव हमने सब हटा दिया है, लेकिन अभी जो लाइमस्टोन तो लगभग कैप्टिव होता है, क्योंकि लाइमस्टोन आप बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो अलाहाबाद के एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कर्नाटक में, आप इसका जल्दी ऑप्शन करा दो। बहुत बड़े बड़े लोग जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अभी बहुत बड़े लोग भी और बड़े लोग भी ऐड हो रहे हैं। जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा हूँ, अदानी भी अभी सीमेंट में आ रहा है। ऑप्शन कर दो, आ जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में हमको हमारे गरीब हमारे छात्र को नौकरी भी मिलेगा। तो 561 मिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन ब्लॉक, इट इज इन आई थिंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायचूर आई बिलीव, and these blocks once auctioned will generate huge revenue and employment in Karnataka. I urge the state government proactively auction this at the earliest. Not only this, we will also give financial incentive to the states during the
6th National Conclave on Mines and Minerals which will end on 10th July. Karnataka will be given following incentives: 2.5 crore as a block incentive. ऑप्शन करने के लिए पैसा दे रहा है, कौन देता था? ये मोदी जी आने से पहले कोई भी नहीं देता था। ऑप्शन करो यार, पैसा लेके ऑप्शन करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है, मैंने बोला, पहले भी बोला, लेकिन और भी मैंने इतना ही कहने का मेरा मतलब है, आपको पोटेंशियल बहुत है, तो आपको अभी हम 2 करोड़ 5 लाख हम दे रहे हैं 12th को, इसके लिए ऑप्शन करने के लिए कौन देता था जी? आपको हम एक्सप्लोरेशन करके हम देते हैं, और इसका ओजीपी हम करते हैं, एक्सप्लोरेशन हम करते हैं, सब करके देने के बाद भारत सरकार को क्या मिलता है? 1 पैसा नहीं मिलता। ठीक है जोशी जी, 1 पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी हमको देश के लिए भला करने के लिए हमारा रिव्यू लेते हैं, करो इतना ऑप्शन करो, सभी पैसा जो है, अभी हम कमर्शियल कोल माइनिंग किया, कुछ राज्यों ने शुरू में विरोध किया, तो पैसा तो उनको मिलता है। तो और मुझे कहते थे उस टाइम, नहीं कोल का खत्म हो गया, कहाँ खत्म होता है जी? अभी इंग्लैंड फिर से कोल से शुरू कर रहे हैं ना जो राजू जी, अभी अनाउंस किया, क्योंकि वो यूक्रेन और इसका जो वार चल रहा है उसके कारण गैस बंद हो गया, तो इसलिए हम फिर से आ रहे हैं अभी। और दुनिया में कितना है रेट? 15,000 टन, 15,000 पर टन, हम कितने में दे रहे हैं जी? 1800 है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को पूछा, साहब हमारा भी थोड़ा प्राइस बढ़ा देंगे? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट पे ध्यान में रखते हुए मत करो। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। जो इंडिजिनस है, भारत में पैदा होता है, इसमें हमको कितना होता है, हमको लोगों को, क्योंकि कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मोदी साहब ने मुझे, प्रधानमंत्री साहब ने मुझे बताया मत करो। 1800 में हम दे रहे अच्छे क्वालिटी कोयला, 15,000 हो गया। और कितना प्रोडक्शन हुआ हमारा? 2014 में होता था 591, अभी कितना किया है? 870 मिलियन टन। और मैं अभी आश्वस्त करना चाहता हूं, नेक्स्ट ईयर से हमारा भारत के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, थर्मल कोल प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा, हमको कोई थर्मल इंपोर्ट करने का नौबत न आए। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है, उस तरफ हमको प्रधानमंत्री जी ने गाइडेंस भी किया है, हम काम भी कर रहे हैं, इसलिए कमर्शियल कोल माइनिंग हो गया है, अबंडेंट माइनिंग हो गया है। तो कैप्टिव माइनिंग में हमने 50% अलो कर दिया है, इसमें भी अलो कर दिया है, अगर कैप्टिव है तो भी हमने अलो कर दिया है। एंड नॉट ओनली दैट, ₹1 करोड़ हम कर्नाटक के 2 करोड़ 5 लाख के अलावा 1 करोड़ फॉर सेक्यूरिंग 3rd प्राइज इन राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार हमने ऐसे काम किया है, 3rd प्राइज है। मैं आपसे चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर जब हम ये देते हैं, आपको नंबर 1 आना चाहिए, फर्स्ट रैंक आना चाहिए। कर्नाटका है 2,867 crores since 2015 from 27 auction blocks. ये सिर्फ मैं ऑप्शन ब्लॉक्स के कह रहा हूँ। This must be increased by auctioning maximum number of blocks. Since state authorities are also present today, I urge them to expedite the auctioning of the mineral blocks. And और भी कुछ हमने जो बदलाव लाया है उसमें ये 10A2B का देश का ब्यूरोक्रेटिक का भी कभी हमको बहुत सोचना पड़ेगा। 500 ब्लॉक 10A2B भी पड़े हुए थे, तो अप्रूव भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, डिलीट भी नहीं करते। 500 ब्लॉक का जहां तक मैं जानता हूं अराउंड 6 लाख हेक्टर, 6 लाख हेक्टर इतना टोटल पड़े हुए, कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं कर रहे थे अप्रूव, सिर्फ 4 अप्रूव हुआ था। तो एक 500 ब्लॉक ऑप्शन भी लाया है और इसको अभी अपील करिए, आप कुछ कारण से कोर्ट में हुआ है, अपील करो इसमें। और एनहांस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट लोगों को लाइए और
सेल ऑफ 50% जो दिया है उससे बहुत लोगों के लिए बहुत आकर्षण है। एंड यूज रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिया है। ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, पहले क्या होता था, अगर माइनिंग लीज मेरे नाम पे है तो अगर मैं राजू जी को देना चाहते तो फिर से सब अप्लाई करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू में पूछा ऐसे क्यों है, चेंज करो। ऑल 21 क्लियरेंस, जब तक माइनिंग लाइसेंस, अगर मेरा माइनिंग लाइसेंस 50 ईयर तक है, मैं 5 पर बाद मैंने राजू जी को ट्रांसफर करता है, सब लाइसेंस एंड क्लियरेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ राजू। बहुत बड़ा स्टेप है, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। हेलमेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला और हमको स्पेशली कोकिंग कोल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसा है तो जहाँ हमारा कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल का क्योंकि हमारा मेजर प्रॉब्लम है, हमारे पास अच्छे तरह से हो रहे बहुत कुछ है, लेकिन कोकिंग कोल के कारण कभी कभी परेशानी होते हैं, तो इसलिए कोकिंग कोल के बारे में हमको ज़्यादा काम करना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जीएसआई में आपका जो साइंटिफिक कम्युनिटी, मैंने देखा बहुत यंग, स्पेशली वुमन साइंटिस्ट वर आल्सो देयर, दे वर एक्सप्लेनिंग and they were explaining, some 2 girls, young girls, they were explaining very well। आप लोगों का नया सोच जो है, नया आइडिया जो है, डायरेक्टली मुझे भेज दीजिए with all seriousness and applying our mind, I will look into it। और प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि देश के मिनरल सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव हो, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर if at all somebody can give in a big chunk of job to the poor people of this country, that is mining sector। Of course MSME is the second sector, but if we mine, we can add to the very big things to the economy। अभी तो हमारा सिर्फ 1.5% या कितना है, 2% है। प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है 5% करने के लिए, रिसेंटली मुझे उन्होंने कहा है, हम उस तरफ से काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपका जो कुछ सुझाव है आप हमारे पास भेजिए। यंग माइंड के लिए नया आइडिया रहता है, तो इसीलिए जो कुछ भी रिटायर होने के लिए आता है ना, उनका सोच, आई एम नॉट टेलिंग, देयर एक्सपीरियंस विल बी वेरी रिच एंड देयर थिंकिंग, देयर एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ी मात्रा में हमको लाभ मिलता है, लेकिन नया आइडिया नया लोगों को आता है। इसलिए मैं सीनियर से आग्रह करता हूँ, उनसे आप इंटरेक्ट करो, आपका एक्सपीरियंस उसमें ब्लेंड करो और हमको आइडिया नया दे दो। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव लाने के लिए ऐसे ही चला दो, चलता है, ये देरी से हम काम करने के लिए नहीं आए हैं। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का हमारा इरादा है प्रधानमंत्री जी का। ये जो बहुत अच्छे लैबोरेटरी इधर एस्टैब्लिश हुआ है, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए, यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबसे आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस जगह से इतना अच्छा हमको रिपोर्ट आना चाहिए कि इससे देश में एक बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। इतना कहते हुए बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Dhanyawad sir, thank you so much for your wonderful work and for such a motivational work. A huge round of applause to our Honorable Minister. In spite of his busy schedule, thank you so much for making your time out and making this wonderful event a grand success by your precious presence, sir. Thank you so much wholeheartedly. And